गुड मॉर्निंग बच्चों। Today's English literature 9th class, the last child. In your book Moment, first chapter is Now I am explaining you or telling you about summary of the lesson. First of all, write difficult word, emerge, involve, humanity, training, covered,
The story tells about the lost child. It is very interesting story. The story starts a village fair in spring season. You know that in spring season, most of villages a fair held after the season end. As in any village, a fair was held, so the villagers with little children and women were going to see the fair. They were almost on foot, but some were going and bullock carts, horse cart, and other ways. A couple with a small child were going towards fair. The child was very little. He was going in the middle of father and mother. He was very eager to see the fair. They were going towards the fair from the footpath of the field. They passed through the mustard field. It seemed like melting gold, and then he entered in the mustard field, attracting to see the bees, and he put petals of the flowers. When he was returning, all petals of flowers were all down, and his parents called him, "Child, come here." Then he came towards her parents. When they reached the fair, they saw a sweet meat seller, यानी sweet seller, sweet shop जिसे कहते हैं, मिठाई की दुकान देखी. There were different kinds of sweets covered with silver and golden leaves. The sweet seller, it means sweet shop seller, was crying loudly, telling her different kinds of names. The little child was attracted towards Barfi, but he could not say anything about it because he knew that his father refused to take it. So he forward. In the next door, there was a shop of different kinds of flower. He wanted to garland of gulmohar, but he know that his father refused to take it. Then he further went towards next shop. There were many different kinds of shops as toy shop, and he further went to the juggler. Juggler was playing his pipes, and Cobra was dancing to hear the voice of pipe. He was attracted to see it, but his mother said to
further go. After that, he reached cell, one of them, but he was afraid that his father did not give him permission to buy it. After that, he went to the spring. A large wheel was moving, and there were many men, women were sitting on the spring. They were crying, screaming loudly. He also wanted to swing on the large swings, but he could not say anything about it. After that, when he turned behind, he did not find his parents. He became very sad and searched everywhere, but he could not find anywhere his parents. There was no any sign of his parents also. At last, he saw a tall man, muscular body. He lifted him in his shoulders and asked him, "Why are you weeping?" Then he took him a sweet shop and urged to take any sweets, but he refused. He sobbed and lamented badly and said, "I did not do any kind of sweet, but I want to visit only my mother and father." It was very sad situations for a little child. He went everywhere, one after another shops, but he could not take any kinds of things. He only sobbed and lamented and said that he want only visit his father and his mother. बच्चों, जैसा कि नाम है द लास्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा, इस पाठ के आधार पर इस समरी मैंने पढ़ाई भी की, आज मैं रिवीजन फिर से करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बसंत के मौसम में, बसंत ऋतु में, आप सभी लोग जानते हैं इस सीजन में गांव में प्राय आज भी मेले लगते हैं, मेले लगाए जाते हैं। तो मेले का आयोजन था, उसमें गांव के सभी वर्ग के यानी वृद्ध, युवा, बालक, स्त्री, पुरुष सभी मेला देखने जा रहे थे। सभी विभिन्न प्रकार की पोशाक पहने हुए थे, लेकिन बसंत ऋतु था तो बसंत ऋतु में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, तो पीले कपड़े पहन करके जा रहे थे। उनमें से कुछ पैदल जा रहे थे, कुछ अपने बैलगाड़ी पर बैठ कर जा रहे थे और कुछ घोड़ा गाड़ी तथा कुछ पालकियों पर बैठ कर जा रहे थे। उसी गांव में कपल, पति पत्नी और एक छोटा बच्चा भी जा रहा था, तो लेखक ने पूरा ध्यान उसी कपल पर केंद्रित किया है। सभी लोगों को बस यहीं तक ला करके छोड़ दिया और आगे जो कहानी बढ़ाई है वो कपल के द्वारा आगे कहानी बढ़ाई है। कपल के साथ जो है छोटा बच्चा था, वो दोनों माँ बाप के बीच में चल रहा था। ये लोग खेतों से होकर के मेला देखने जा रहे थे। खेतों में पगडंडियाँ होती हैं, पगडंडियों में ये चल रहे थे। तभी इनका छोटा बच्चा खेत में तितलियों को देख करके अंदर घुस गया और उसने वो तितलियों के पीछे दौड़ने लगा। एक काला भौरा आया, उसके कान में जो है के मराने लगा।
तो इस तरह का सिचुएशन उन्होंने डाला है। और इसके बाद उसकी माँ ने आवाज़ दी, बच्चा आओ, तो दौड़ करके वापस आता है। गांव की पगडंडियाँ जो होती हैं खेतों की, बहुत ही सक्रिय होती हैं, उनमें चलना बड़ा मुश्किल होता है, कटीले होते हैं, वहाँ पर धूप कांटे आदि होते हैं। और जब बसंत ऋतु होती है, बसंत ऋतु में जो विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो शाम के समय धूप यानी दोपहर धूप सेकने के लिए बाहर निकलते हैं अपने छिपे हुए स्थानों से। तो सब बाहर निकल आए, तो विभिन्न प्रकार की जो ध्वनियाँ थी, आवाज़ें थी उनकी, जो मिक्स होकर के आ रही थी। उसी रास्ते से होकर के ये जब मेले में पहुँचे तो सबसे पहले इन्हें खिलौने की दुकान मिली, इसके बाद मिठाई की दुकान मिली। मिठाई की दुकान में इसे बच्चे को बर्फ़ी बहुत पसंद थी, तो इसने आग्रह किया, लेकिन जानता था कि इसके पिता उसे बर्फ़ी नहीं लाएंगे, अपना मना कर देंगे, और ऐसा ही हुआ। इसके बाद ये फूल की दुकान में गया, जहाँ पर ये गुलमोहर की माला चाहता था, लेकिन उसके पिता ने मना कर दिया कि बच्चे तुम्हारे खेलने की उम्र नहीं है। इसके बाद ये सपेरे के पास पहुंचता है। सपेरा जो है अपनी बीन बजा रहा है और कोबरा उसके सामने नाच रहा है। इस तरह से आगे बढ़ता है और वह झूले के गुब्बारे के पास पहुंचता है। गुब्बारा वाला विभिन्न प्रकार की जो है गुब्बारे लिए हुए हैं, उनमें रेशमी और सतरंगी गुब्बारे भी हैं जो इंद्रधनुषी कलर के हैं। उन सभी में से उसे सबसे ज़्यादा वही गुब्बारा पसंद है, वो उसे लेना चाहता है और उसने आग्रह भी किया, लेकिन उसके पिता ने ये कहकर मना कर दिया कि तुम्हारे खेलने की चीज़ नहीं है। इस तरह से वो झूले के पास पहुंचता है और वहीं से वह अपने मम्मी पापा को खो देता है। बहुत ही बेचैन होता है और सब जगह तलाशता है। उसके कपड़े पसीने से गीले हो जाते हैं, भीग जाते हैं और उस पर धूल लग जाने से धब्बे पड़ जाते हैं। उसका जो सर पे पगड़ी बांधे हुए खुल जाती है। ये सारा कुछ हो जाता है, बहुत परेशान होता है, लेकिन उसे मम्मी पापा कहीं नहीं मिलते। अंत में एक मंदिर के पास एक मोटा जो है आदमी उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे शुरुआत से यानी शुरू से जहाँ से मेले से लोग चले थे वहाँ से लेकर के लास्ट तक पहुँचता है। सबसे पहले मिठाई की दुकान, खिलौने की दुकान, फूलों की दुकान, गुब्बारे वाले और अंत में सपेरे वाले से तथा झूले तक लेकर आता है, लेकिन वो एक एक करके सभी के लिए मना कर देता है और वो सिर्फ रोता है, सुबकता है और यही केवल आग्रह करता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मम्मी पापा से मिलना है। यही कहानी इन्होंने समाप्त कर दी है। उसके मम्मी और पापा नहीं मिलते।